Hello, dear students, it's me Shakil Khan. Students, in today's video, you will learn about present, past, and future perfect tenses. So, first of all, I will tell you about the formulas, its identification in Urdu, Hindi, and how to make sentences by using these formulas. स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप सीखेंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के मुतालिक। सबसे पहले आप जानेंगे इनके फार्मूलाज के मुतालिक, इनकी उर्दू हिंदी में पहचान और इन फार्मूलाज को लेके जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं ये सीखेंगे। आइए नज़र डालते हैं इनके फार्मूलाज पहचान पर। Students, let's have a look at the formulas and its identification. Students, the formula of present perfect tense is subject plus has slash have plus verb third form plus object. If I talk about past perfect, then the formula is subject plus had plus verb third form plus object, and the formula of future perfect tense is subject plus will have plus verb third form plus object. स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी पहचान के बारे में बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है अगर उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, ली है, दिया है, दी है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो इसकी पहचान है उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दिया था, दी थी। और अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की तो इसकी पहचान है उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी। ये हैं तमाम फार्मूलाज और इनकी पहचान। आइए नज़र डालते हैं इनके जुमलों पर कि इन फार्मूलाज को लेके जुमले किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। Students, let's have a look how to make sentences by using these formulas. Students, the first sentence which I have is for present perfect tense. The sentence is we already have seen this movie. हम ये फिल्म पहले ही देख चुके हैं। The second sentence is about past perfect. That is we already had seen this movie. हम ये फिल्म पहले ही देख चुके थे। The third sentence is about future perfect tense. That is we already will have seen this movie. हम ये फिल्म पहले ही देख चुके होंगे। The next sentence is you have lost your purse. तुम अपना पर्स खो चुके हो। You had lost your purse. तुम अपना पर्स खो चुके थे। You will have lost your purse. तुम अपना पर्स खो चुके होगे। They have played cricket in this ground. वो इस मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। They had played cricket in this ground. वो इस मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। They will have played cricket in this ground. वो इस मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। I have never eaten food at that restaurant before this. मैंने इससे पहले कभी उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया है। I had never eaten food at that restaurant before this. मैंने इससे पहले कभी उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। I will never have eaten food at that restaurant before this. मैंने इससे पहले कभी उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया होगा।
आमिर हैज़ नॉट स्पोकन टू यू अबाउट इट। आमिर ने इसके बारे में आपसे बात नहीं की है। आमिर हैड नॉट स्पोकन टू यू अबाउट इट। आमिर ने इसके बारे में आपसे बात नहीं की थी। आमिर विल नॉट हैव स्पोकन टू यू अबाउट इट। आमिर ने इसके बारे में आपसे बात नहीं की होगी। हैज़ ही अप्लाइड फॉर द नेक्स्ट जॉब इन अमेरिका। क्या उसने दूसरी मुलाजमत के लिए अमेरिका में अप्लाई किया है। हैड ही अप्लाइड फॉर द नेक्स्ट जॉब इन अमेरिका। क्या उसने दूसरी मुलाजमत के लिए अमेरिका में अप्लाई किया था। विल ही हैव अप्लाइड फॉर द नेक्स्ट जॉब इन अमेरिका। क्या उसने दूसरी मुलाजमत के लिए अमेरिका में अप्लाई किया होगा। Students, you can see the difference among these three tenses. Only the difference is about helping verbs. You can see for present perfect tense we use has and have as a helping verb. For the past perfect tense we use had as a helping verb. And for the future perfect tense we use will have as a helping verb. So if you would like to change any sentence from present to past, past to future, just change helping verbs as I did in the first three sentences. You can see all these sentences and you will be able to know the difference among these three tenses. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने इन तीनों टेंसेस को जब तब्दील किया एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज किया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में अगर आप जुमले तब्दील करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने होंगे। जैसा कि प्रेजेंट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। सो प्रेजेंट से अगर आप पास्ट में कोई जुमला चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं एक जुमला कहूँ कि मैंने अंग्रेज़ी सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश। अगर आप इसको पास्ट में चेंज करना चाहते हैं, मैं अंग्रेज़ी सीख चुका था या मैंने अंग्रेज़ी सीख ली थी, तो आप कहेंगे आई हैड लर्नड इंग्लिश। और इसी को अगर आप फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना चाहें तो आप कहेंगे मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँगा, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। सो यही फ़र्क है इन तीनों टेंसेस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़र्क समझ आ चुका होगा। अब जब आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जुमले बनाएंगे तो आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप खूब समझ चुके होंगे और अब आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। Essence, it was all about present, past and future perfect tenses. I hope you enjoyed it and found it helpful. So keep on learning English with Indus English. Let's see in the next video. Till then, God bless you. Bye bye.